Hello and welcome to the channel Homeo with Ease. Myself Prapti Jaiswal, and in this video I will be discussing about important questions of organ and psychology, as many students asked me for this particular video, so I am here with important questions. And let me tell you before starting the video that if you have not subscribed to the channel, you can consider subscribing to get all the notifications of my videos, and I'll be uploading more such videos regarding to studies, important questions and exam oriented thing. And if you are a BHMS student, you should really consider subscribing to our channel, and if you have any doubt you can comment me down below. So for organ and psychology, we all know that organ will be for 50 marks and psychology will be for 50 marks. So we have to cover all the syllabus before going to an examination. Though this is an important questions, but at least once you should be going through with all the topics. You have to go with all the topics of your syllabus of organ and sorry for the background noise, and of psychology. So organ is such a subject that you don't need to learn as such anything more, and मोर और लेस इट्स लाइक अगर तुम्हें समझ गया है ऑर्गेनन क्या है, अगर एफोरिज्म्स में क्या दिया है, इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दी ऑर्गेनन पार्ट, तो अगर तुम्हें समझ गया है व्हाट हैज़ एग्जैक्टली गिवन इन द एफोरिज्म्स और तुम्हें अपने आप अपने मन से वो एग्ज़ाम्स में लिखना है, सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट. अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम राइटिंग अच्छी लिख कर पाओगे, तो फिर तुम तो उसमें तुम्हें ऑर्गेनन का स्ट्रेस है ही नहीं पास होने का और अच्छे मार्क्स से पास होने का. तो एंड इवन इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड, तुम्हें अच्छे से समझना है एंड यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. तुम्हें जो लगता है, तुम्हें कोई भी ऐसा चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ ऑर्गेनन. सो personally it's my favorite subject. So let's see what are the important topics, and these are those topics जिन्हें तुम छोड़ ही नहीं सकते. मतलब you have to cover all the syllabus. Firstly you have to cover all the portion. You should be knowing everything about the organon. But these are those topics जो तुम अच्छे से रीड करो, तुम इसके नोट्स रीड करो, तुम इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक रेफ़र की है या कोई नोट्स फॉर्मेट में, तो तुम उधर से ये रीड करो. ये वो टॉपिक्स है ओके जिन्हें तुम्हें अच्छे से अपने मन से तुम लिख सकते हो, नो डाउट. बट इन्हें तुम अगर नोट्स से रीड करोगे, अच्छे पॉइंट्स तुम खुद ही अगर नोट डाउन करके रखोगे कि अगर ये एग्जाम में तो कौन कौन से पॉइंट आई हैव टू कवर, सो दिस विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू ऑल. सो फर्स्ट विल सी ऑर्गेनन वाला पार्ट. सो फॉर ऑर्गेनन, लॉजिक इज कंपल्सरी क्वेश्चन. लॉजिक इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन. तो लॉजिक तो तुमको करना ही है. तो इसमें अपने पास इंडक्टिव लॉजिक है और रिडक्टिव लॉजिक है, तो 5 मार्क्स के लिए ये आने ही वाला है. दिस इज़ फॉर श्योर दैट दिस इज़ गोइंग टू कम. ये श्योर ही है कि आएगा ही 5 मार्क्स के लिए. तो ये तुम्हारे हाथ के मार्क्स के 5 मार्क्स हाथ के तुम्हारे, तो 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं कि राइट व्हाट इज़ लॉजिक, या दे कैन आस्क व्हाट इज़ इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक सेपरेटली ऑल्सो. ठीक है. एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 2024 एज एन SAQ. नाउ आई विल ऑल्सो अटैच 2024 का पेपर at the end of this video, so please watch till end and like if you liked it and comment me down below. अगर कुछ भी improvement, positive, negative feedback, anything you can comment me down below. Then aphorism number 1. In aphorism number 1, Hahnemann sir has given us the physician's mission. So ये भी important question है. This can be asked for SAQ. So you should गो थ्रू विथ मल्टीपल नोट्स. और मतलब समझ में तो आ गया है, बट अच्छे पॉइंट्स टू राइट इन द एग्जामिनेशन यू कैन रिफर नोट्स. Then second aphorism is important, highest ideal of cure. So this has been asked in 2024, so this is important. Then aphorism number 3 is very important. This is very very important, qualification of a physician. और तुम्हें पता है ऑर्गेनन में कैसा होता है. ऑर्गेनन में इफ़ यू नो द कॉन्टेक्स्ट, इफ़ यू नो व्हाट इज़ गिवन, अगर क्वेश्चन अगर कुछ भी घुमा के भी आए ना कि व्हाट इज़ द व्हाट शुड बी द व्हाट नॉलेज शुड अ फिजिशियन शुड हैव, तो अगर नॉलेज पूछा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन. तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, बट इट शुड बी करेक्ट. कोई तुम्हें ऑर्गेनन में गलत नहीं बोल सकता, बट इट शुड बी लॉजिकल. ओके. सो इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट द ऑर्गेनन, यू कैन डेफिनेटली राइट. So qualification of a physician.
कि उन्हें इंडिविजुअलाइजेशन, देन नॉलेज ऑफ डोज, मेडिसिन, डिजीज़. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन 2024. देन एफोरिज्म नंबर 26 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज दे से एफोरिज्म नंबर 1, 3 एंड 1, 2 एंड 26 ये तो तुमको लर्न होने चाहिए एफोरिज्म्स. ओके, देन उसके बाद 1, 2, 3 एंड 26 आर सो इम्पॉर्टेंट. पक्का इसमें से क्वेश्चन रहता ही है मतलब रहता ही है. और 26 तो गारंटीड आनी है. दिस हैज़ बिन आस्क्ड इन 2024 रिसेंट पेपर LAQ के लिए. ओके, 26 में दिया है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं होम्योपैथिक्स लॉ ऑफ क्योर. यह क्वेश्चन कुछ भी आएगा बट तुम्हें पता होना चाहिए उसके बारे में, देन यू कैन राइट ईजिली. देन एफोरिज्म नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट. उसमें दिया है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, हाउ एंड वाई फिजिशियन शुड बी अनप्रिजुडाइज, मतलब कि ही शुड नॉट जज एनीथिंग beforehand. Okay, then aphorism number 9 to 12 is very important. In aphorism number 9 to 12 they have given us about the vital force. So vital force in health, then disease and cure. So vital force in health मतलब कि हमारा हेल्थ, जब हमारी बॉडी हेल्थ में रहती है, when we are in a healthy condition, तो वो किस वजह से रहती है, हमारे वाइटल फोर्स की वजह से होती है. देन अगर डिजीज़ के बारे में दिया है, जब अगर डिजीज स्टेट हो गया तो उसमें वाइटल फोर्स का क्या रोल है कि जब वाइटल फोर्स डीअरेंज हो जाता है तब वो डिजीज स्टेट में आती है. देन क्योर का क्या श्योर है कि वाइटल फोर्स रिस्टोर हो जाता है खुद से, तो हमारे क्योर हो जाते हैं. तो दिस यू हैव टू सी इन डिटेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन वाइटल फोर्स पे पूछा था 2024, इन विच वी हैव टू कवर ऑल दीज 3 थिंग्स. देन एफोरिज्म नंबर 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, in which they have given totality of symptoms. Okay, then drug proving, very important. ये LAQ के लिए आएगा ही आएगा मतलब आएगा ही आएगा. सो इसमें से तो क्वेश्चन ऐसे है कि 26 तो आएगा ही आएगा. 1, 2, 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिक डेफिनेटली आने वाला है. वाइटल फोर्स इज इंपॉर्टेंट अगेन. ड्रग प्रूविंग आएगा ही LAQ के लिए. एंड इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट ड्रग प्रूविंग इन होम्योपैथिक फार्मेसी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन organon also, or if you have done in organon it will help you in homeopathic pharmacy. Okay, तो aphorism number 105 जो उसका दिया है aphorism, you can use this as a definition. Then drug proving on sick and drug proving on health is very important. बाकी तो अगर तुम्हें in general अगर तुम्हें पता होगा drug proving के बारे में, which you will be studying in homeopathic pharmacy, so it will definitely help you अगर कोई भी question drug proving से आ गया तो. देन अगर हम नॉर्मली, ये तो हमारी सारे एफोरिज्म्स की बात हो गई है. अगर हम अदर क्वेश्चंस देखें इंट्रोडक्टरी पार्ट में से, तो 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज़ इम्पॉर्टेंट कि हु इंट्रोड्यूस्ड इट एंड उसमें क्या क्या नए एडिशंस हुए हैं, वो कौन से ईयर में वो आया था. सो डेट इज़ इंपॉर्टेंट. देन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमारे 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, वो उसके बारे में तुम थोड़ा सा आइडिया ले लेना, और आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. देन प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, एफोरिज्म नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट. ये 2024 में आ चुका है क्वेश्चन. नाउ विल सी साइकोलॉजी वाला पार्ट. साइकोलॉजी वाला पार्ट इज़ सो ऑब्वियस, मतलब मैं क्या ही बोलूँ ऑर्गेनन एंड साइकोलॉजी वाले पेपर के बारे में. मतलब ये ऐसा है कि तुम्हें पूरा सिलेबस, इफ़ यू हैव नॉट सीन माई वीडियो और इफ़ यू डोंट नो द पेपर पैटर्न, फर्स्ट गो and see the video of paper pattern, or just find out the paper pattern and go and study according to that. इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, अगर तुमने पेपर पैटर्न ही नहीं देखा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाला है, देन यू शुड गो एंड फर्स्ट वॉच दैट एंड नोट डाउन दैट. सो ऑर्गेनन एंड साइकोलॉजी इज़ लाइक दैट कि भाई तुमको पूरा पैटर्न दिया है, तुम्हें पूरा ऊपर से बताया कि भाई ये आएगा, पढ़ लो तो कर लो. दैट इज़ सो सिंपल एंड ये आराम से हो जाएगा. साइकोलॉजी में तो कुछ टॉपिक्स है और उसमें से वो डेफिनेटली आने वाला है. ये पेपर पैटर्न में तुम्हारा दिया है कि इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर. इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो ऑफ साइकोलॉजी, आई हैव ऑल्सो मेड वीडियो फॉर साइकोलॉजी, बिकॉज BHMS के लिए साइकोलॉजी के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, एंड आई हैव मेड वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड. ओके, सो यू कैन वॉच एंड रिफर दोज नोट्स. सो थिंकिंग एंड बिहेवियर पे आई हैव मेड वीडियो. सो आउट ऑफ इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है. एक SAQ पक्का आएगा, एक LAQ पक्का आएगा. कर लो ना ये 3 क्वेश्चन अच्छे से, बना लो वीडियो देख के नोट्स अपने खुद के. पीपल आस्क मी मैम फ्रॉम वेयर विल वी गेट दीज नोट्स. So I have not made a Telegram channel which I'll be making soon, but देखते देखते वीडियो देखते देखते बना लो ना खुद के नोट, जो तुम्हारे पास खुद होंगे लिखे हुए अपने हाथों से, एक बार गया हो वो ज़्यादा ध्यान रह जाएगा.
तो मेक नोट, एंड ये तीनों भी क्वेश्चंस हमारे पास अपने पास अच्छे से एक जगह बना के रखो, एग्जाम में एक आने ही वाला है, मतलब दो, एक ऐसे क्यू के लिए डेफिनेटली आएगा, एक एल क्यू के लिए डेफिनेटली आएगा, फ्रॉम विच और इमोशन का क्वेश्चन आया था 2024 में। देन पर्सनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी दिया हुआ है, ये आया था 24 में। मोटिवेशन ये तुम्हारे पेपर पैटर्न में दिया है, जो ऐसे क्यू के लिए डेफिनेटली आएगा, ये डेफिनेट क्वेश्चन है। लेट मी मार्क विथ रेड, दिस इज़ डेफिनेट क्वेश्चन जो आएगा ही पेपर में। इनमें से दो डेफिनेट क्वेश्चन है। देन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये 10 मार्क्स के लिए पक्का आने वाला है। सो अगर तुमको पता है ये 10 मार्क के लिए आने वाला है, तो 10 मार्क के हिसाब से 4 पेज का तुम खुद ही लिख लो ना अपने पास नोट्स पहले, सो दैट इट विल बी बिकम ईजियर फॉर यू टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। सो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एज एन LAQ इन 2024। देन साइकोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन होम्योपैथी, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ये भी आया था 2024 में। सो दीज 3 क्वेश्चन आर सो ऑब्वियस, मतलब यहाँ पर 15 मार्क्स हो गए, ये 5, 20 और ये 20 और ये 30, 50 में से 30 मार्क्स इज सो ऑब्वियस कि 30 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है भाई। और उस 30 मार्क्स के अलावा 5 मार्क्स MCQ के, 35 मार्क्स हो गए। बचते कितने 50 में से 35 मार्क्स तो तुम्हारे हाथ में है, उसके बाद बचते 15 मार्क्स। तो साइकोलॉजी में ऐसा है ही नहीं। स्कूल्स, आई एम टेलिंग यू दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आराम से, ऑर्गेनन इज सो सिंपल। So here we end this video. I hope it helped you all. And जिन्होंने भी कमेंट किया था ऑर्गेनन के important questions के लिए, so here you are, we are, and we will always be there. And as your senior, I would like to help you all. Comment me down below and subscribe to the channel and share it with your friends so that we grow as a community. And thank you for watching.